میری تباہی کی کہانی میں زیادہ دوش میرا ہے یا میرے والدین کا؟ یہ الزام اپنے والدین پر لگانا تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے تو میرے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ہی اپنے خوابوں کا سنہری جال خود پر اس طرح ڈالا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ انہوں نے میرا نام رحمت اس لیے رکھا تھا کہ بیٹی ان کے آنگن میں رحمت بن کر اتری ہے۔ بڑی منتوں مرادوں سے انہوں نے مجھ کو رب سے مانگا اور پا لیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ بیٹی نہیں بلکہ اپنی عزت کی اجلی اور سفید چادر کے لیے سیاہ دبا مانگ رہے ہیں تو شاید وہ پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا چراغ گل کر دیتے۔ دونوں بھائیوں اور میری عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ کالج جاتے تھے جب میں پیدا ہوئی۔ اتنی مدت بعد ماں کی گود ہری ہونے پر خاندان بھر حیران تھا، مگر اتنا خوش تھے کہ ان کے گھر آنگن میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی تھی۔ بھائی بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ باپ کے مکان میں میری معصوم کلاکاریوں کے باعث بہار کا سا سما رہتا تھا۔ اپنے تو اپنے گھر کے نوکر بھی خوش تھے۔ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ دادی بے حد لاڈ پیار سے منع کرتی، کہتی کہ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے، لڑکی ذات ہے، اتنا نہ بگاڑو کہ کسی گھرانے سے مطابقت اس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ میں 8ویں میں تھی جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھابھی بہت اچھی تھی، سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ امی سمجھاتی بھی ان کو آرام کرنے دو، مگر میں ان کی ایک نہ سنتی تھی۔ سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر صحرا سج گیا۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھ کو اب بھی اتنا ہی وقت دیتے جتنا پہلے دیا کرتے تھے، بلکہ اب تو گھر میں میرے ناز اٹھانے والی بھابیاں بھی آ گئی تھیں۔ کتنی خوش قسمت تھی میں کہ میرے دونوں بھابیاں بھی مجھ کو اس طرح چاہتی تھی جیسے میں ان کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بھابیاں ہی بہت اچھی تھیں۔ ہم مل بیٹھتے تو کہکوں کی برسات ہو جاتی، اگر حسنہ آ جاتی تو محفل گل و گلزار ہو جاتی۔ حسنہ میری عزیز جان سہیلی تھی، اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا، تبھی زیادہ تر ہمارے گھر پائی جاتی تھی۔ میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی، اسے بچھڑنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ دراصل میں ایک جنونی قسم کی لڑکی تھی، جس کے ساتھ تعلق بن جاتا یا وابستگی آخری حدوں کو چھو لیتی تھی۔ حسنہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حسنہ کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑی کہ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے اور میں اس کو خود سے بچھڑنے سے نہ روک پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور 15 دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری۔ ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر مجھ پر گزرتا۔ میری کوئی بہن نہ تھی، یہ کمی اسی لاجواب اور دھیمے مزاج والی لڑکی نے پوری کر دی تھی۔ اس سے جدائی کے تصور سے مجھے ہر وقت رونا آتا، آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے۔ اتفاق کہ ان دنوں ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ اللہ نے میری سن لی۔ امتحان کی خاطر حسنہ کے والدین نے اس کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اگرچہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے، پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی، ہمارے گھر قیام پذیر تھی۔ ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی، پرچے دیے اور وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ حسنہ کے والد اس کو لینے آ گئے۔ اس دن میں بہت روئی، آنکھیں رو رو کر سرخ کر ڈالیں۔ وہ بھی روتی ہوئی ہمارے گھر سے گئی۔ 14-15 برس کی عمروں میں ہم لڑکیاں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ اف، میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی۔ حسنہ چلی گئی، میں اداس رہنے لگی، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ امی کو ڈر تھا کہ کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ بھائی میرا دھیان بٹانے کو گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسنہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانند چکر لگاتی رہتی تھی۔ بالآخر میں ہمدم سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی۔ والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے کہا کہ اس کو حسنہ سے ملانے کراچی لے چلتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی، والدین سے اصرار کیا کہ کراچی چلیں۔ مجبوراً والدین مجھے کراچی لے آئے۔ حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری اور پیش مردگی کافور ہو گئی۔ وہاں ہم کچھ دن رہے لیکن تا دیر تو نہ رہ سکتے تھے، گھر واپس آنا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے؟ میں نہ مانی اور ضد پکڑ لی۔ یہ والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار بھائیوں کے سپرد کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسنہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے حسنہ کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والد کے ساتھ سامان بھی لاہور سے لانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ میں نے کالج کے رستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا
तो वो भी मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया। अब मैं खुद को समझाती कि उसकी जानिब ध्यान ना दूं, लेकिन वो तो रोज़ ही खड़ा मिलता था। मैं उसकी जानिब देखे बिना ना रह पाती। खुद से खौफ भी आता था कि जुनूनी तबीयत पाई जाती है। किसी से भी ताल्लुक़ बनाने से घबराती थी कि ये ताल्लुक़ खुद मेरे लिए बाइसे अज़ाब बन जाता था। एक सहेली की मोहब्बत ने मेरे वालिदैन से उनका शहर छुड़वा दिया था, तो ये दूसरा ताल्लुक़ न जाने कौन सा दिन दिखाने वाला था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि इस नौजवान ने मेरा रास्ता रोक लिया और एक मोबाइल फ़ोन मेरे हाथों में थमा कर चलता बना। लोग देख रहे थे, उसको आवाज़ भी ना दे सकी। अब इस मोबाइल ने काम दिखाया। उसके वॉइस मैसेजेस जो उसने मुझको मुखातिब करके भरे थे और इल्तजा की थी कि मैं उसके मैसेजेस का जवाब अपनी आवाज़ में दूं और मोबाइल अगले दिन उसको वापस लौटा दूं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। बहरहाल मैंने वॉइस मैसेजेस तो रिकॉर्ड ना किए, अलबत्ता मोबाइल लौटाने की नीयत से अगले दिन इस जगह खड़ी हो गई जहाँ वो खड़ा रहता था। वो कहने लगा, सामने पार्क में आ जाओ, यहाँ लोग बहुत हैं, वहाँ मैं तुमसे अपना मोबाइल फ़ोन ले लूँगा। मैं बेखौफ पार्क चली गई। वो 1 मिनट को मेरे पास आया, कहने लगा, सामने मेरा दोस्त आ रहा है, कल ले लूँगा, फ़ोन अपने पास रखो। ये कहकर बगैर फ़ोन लिए वो चलता बना और मैं हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। ये उसकी चाल थी। वो इस बहाने मुझे दोबारा पार्क में बुलाना चाहता था। घर आते ही इसका फ़ोन खोला, तमाम वॉइस मैसेजेस सुनने लगी। ये तकरीबन 12 वॉइस मैसेजेस उसने मेरे नाम रिकॉर्ड किए थे। पहले दिन तो 2 ही खोले थे, जिनमें कुछ इस तरह की बातें थीं। आपकी नज़रों ने मुझे हिम्मत दी कि आपको मुखातिब करूं। आपकी निगाहें मुझसे पसंदीदगी का इजहार करती हैं। उम्मीद है आप मुझको मायूस ना करेंगी कि मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई ज़रिया समझ में ना आया तो अपने ही मोबाइल फ़ोन को कासिद बनाकर आपके हाथ में पकड़ा दिया। मेरा नंबर इसमें फ़ीड है, राब्ता रखना चाहें तो अपने पास महफूज कर लेना। अभी मैं उसके पैगामात एक एक करके पढ़ रही थी, अम्मी कोई शय लेने मेरे कमरे में आ गई। उसका मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था, लेकिन वालदा ने ध्यान ही ना दिया। वो अपनी मतलूबा चीज़ उठाकर वापस चली गई। अम्मी मेरे कामों में बहुत कम दखल देती थी। काश वो उस दिन गौर कर लेती कि मैं किसी का मोबाइल पकड़े हूँ। उन्होंने तो मुझको ना टोकने की कसम खा ली थी। वालदैन मुझको बड़ा अहम समझते थे। वो मुझ पर बहुत एतबार करते थे। मेरी हर बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। उस बात ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। खुद को जाने क्या समझने लगी। मैं ये समझने लगी कि मेरा हर फैसला ठीक होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगले दिन का मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। उसका मोबाइल मेरे दिल का बोझ बन गया था। चाहती थी कि कल ही लौटा दूं और इसको चंद बातें भी सुना दूं। अगले रोज़ उसको देखकर जाने क्या दिल को हुआ कि खरी खरी तो ना सुना सकी। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि इस तरह किसी लड़की के हाथ में सरे राह अपना मोबाइल पकड़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है। अगर इस पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहूँ तो पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करोगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो मैं भी कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ। मुझको तुम्हारी आंखों ने कुछ कहा तो ही मैंने ये जुर्रत कर ली। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुमको यहाँ तो क्या इस दुनिया में ही नज़र नहीं आऊँगा। खैर माफ़ किया, मैंने बेनियाजी से कहा और मोबाइल उसको दे दिया। ताहम अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ना दिया। मैं कोई सबूत ऐसा उसके हाथ में ना देना चाहती थी कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। उसकी ऐसी जसारत पर मुझे उस पर गुस्सा ना आया था, क्योंकि उसके लिए दिल में नरम गोशा पहले से ही मौजूद था। इसी नरम गोशे ने मुझे ये राह दिखाई कि मैं बाद में उसके साथ पार्क में जाकर बैठने लगी। उसकी बातें मुझे अच्छी लगती, जिनमें मोहब्बत की महक रची बसी होती थी। अपनी तारीफ सुनकर मैं फूले ना समाती। अब रोज़ प्रैक्टिकल का कहकर कॉलेज से पार्क चली जाती। मुझको देखकर ज़ुबैर की आंखों में खुशियों के दीप जल उठते। फिर ये हाल हुआ, जिस रोज़ हमारी मुलाकात ना होती कमी सी महसूस होती। वो अब मेरी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर गया था। एक रोज़ कॉलेज में मुझे पता चला कि उसकी और भी लड़कियों से दोस्तियां हैं। मेरी एक क्लास फेलो ने मुझको उसके साथ रास्ते में बातें करते देख लिया। दूसरे रोज़ उसने मुझसे पूछा कि ज़ुबैर तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मैंने भी यही सवाल इससे कर दिया कि वो तुम्हारा क्या लगता है। वो मेरा चचा ज़ाद है, लेकिन अच्छा लड़का नहीं है, नशा करता है और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्विस है। तभी मेरे वालिद साहब ने मेरी बाजी के रिश्ते से सख्ती से इनकार कर दिया है। राबिया ने मुझको चंद लड़कियों के नाम और फ़ोन नंबर दिए कि तुम खुद उनसे बात करके तस्दीक कर लो कि उनको भी बेवकूफ़ बना रहा है।
اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے इन लड़कियों का खोज निकाला, उनसे मिलकर तस्दीक की, वो सब सही था जो राबिया ने बताया था। मुझको बेहद दुख हुआ। जुबैर ने मेरे साथ धोखा किया था और झूठ बोला था कि मुझसे पहले उसकी किसी लड़की से दोस्ती ना थी। अब जो मैं उससे पार्क में मिली तो इन लड़कियों के नाम उसको बता दिए और दो टोक बात की कि तुमने इन लड़कियों को बर्बाद किया है, बोलो ये बात सच है या नहीं। वो घबरा गया, कहने लगा, तुमसे किसने कहा है? जिसने भी कहा है, कहा तो सही है ना। जब उसको यकीन हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ तो वो कमीनगी पर उतर आया, कहने लगा, मैं तुमको भी ऐसे ही रुसवा कर सकता हूँ जैसे मैंने उनको किया है, वरना मुझसे यूं ही मिलती रहो। हरगिज़ नहीं, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मजबूर किया तो मैं अपने वालिद और भाइयों से शिकायत कर दूंगी, वो तुम्हारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मुझे धमकाती हो, जानती हो इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, मेरी दोस्त ने तुम्हारे मेरे साथ अपने मोबाइल में तस्वीरें बनाई हुई हैं जब हम पार्क में महवे गुफ्तगू होते थे। तुम तो मोहब्बत के जज्बे से मदहोश मुझ में खोई होती थी। तुमको मालूम भी ना हो सका कि कोई हमारी मूवी और तस्वीर बनाता था। यह सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। तो क्या कोई मोहब्बत का नकाब ओढ़ कर इतना भी गिर सकता है? अच्छा, मैं माजरत करती हूँ जो मैंने तुमको गुस्से में कह दिया, लेकिन तुम वो तस्वीरें और मूवीज़ अपने दोस्त के मोबाइल से डिलीट कर दो। वो तो मैं कर दूंगा, उसका फ़ोन मेरे ही घर पड़ा है। मुझे कैसे यकीन आए कि तुम वाकई डिलीट कर दोगे? यकीन ना आए तो अभी मेरे साथ चलो और अपने हाथ से खुद वो सारी तस्वीरें वगैरह मिटा डालो। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसके घर चली गई। मुझको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था। वो घर हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था जहाँ ज़ुबैर मुझे ले गया था। मेरा ख्याल था कि वहाँ अफराद खाना होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस खाली मकान में उसने मेरा बुरा भला कहने का बदला ले लिया और हद से बड़ी मेरी खुद एतमादी ने मेरे गरूर को खाक में मिला दिया। इतनी बड़ी कीमत लेकर उसने वो मोबाइल दिया जिसमें मेरी और उसकी पार्क वाली तस्वीरें और मूवीज़ थी। मैंने इन सब चीज़ों को खुद डिलीट किया तो मेरी जान में जान आई कि अब मैं रुसवाई के ख़तरे से बाहर हो गई हूँ। लेकिन ये तो मेरी खाम ख्याली थी। ऐसे तेज़ तरार गलत किस्म के आवारा लड़के भला इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं। उसने मेरी तस्वीरें एक और मोबाइल में महफूज कर रखी थी जो उसने फेसबुक में डालकर मुझको सारे ज़माने में रुसवा कर दिया। ये तो मैं सोच भी ना सकती थी कि वो इतना सफाक दिल होगा। उसने मोहब्बत के इतने कोलो करार के बाद भी हया न की। मुझसे बड़ी भूल हुई कि उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उस पर एतमाद किया। दरअसल माँ बाप ने इतना मुझको प्यार और एतमाद दिया था कि मेरा ख्याल था कि मैं चांद पर भी उड़कर चली जाऊँ तो जा सकती हूँ। कोई भी अजनबी और तन्हा जगह मुझको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फेसबुक पर मेरी तस्वीरें चलने से मैं ही बदनाम ना हुई, मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे वालिद रुसवा, भाई भी बदनाम। उनके लाड प्यार को मैंने अपनी नादानी से रुसवाई के अंधेरों में धकेल दिया। अब्बू बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना तर्क कर दिया। पहले मैं क्या थी और आज क्या हूँ। कभी कभी इंसान की ज़रा सी लग्जिश उसको इज्जत भरी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकती है कि वो मुंह के बल जा गिरता है और फिर तमाम उम्र उठने के काबिल नहीं रहता। ज़ुबैर ने तो मुझे बर्बाद करके घर बसा लिया है, लेकिन मैं अपने घर में भी अजनबी हूँ। मेरा तजर्बा भी यही कहता है कि रियाकार मर्द का वाकई कोई एतबार नहीं होता। वो एक ऐसे सांप की तरह होता है जो मौका पाते ही डस लेता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी हवस की खातिर कितनी ही मासूम और बेगुनाह लड़कियों की ज़िंदगियाँ उजाड़ते चले जाते हैं। शायद वो अपनी हवस की शिद्दत में यौम हशर को भी भूल जाते हैं। खूबसूरती इस पर सोने पर सुहागे का काम करती है। ये एक ऐसा पर्दा है जो इंसान के अंदर की सूरत को बिल्कुल छुपा देता है। तब औरत हो या मर्द, उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है कि वो धोखा देने वाला है या कि धोखा खाने वाला। मैं भी एक ऐसे ही हसीन चेहरे के फरेब में उलझ गई थी, तभी धोखा खा गई। फिर जब उसकी शख्सियत से पर्दा उठा, बहुत देर हो चुकी थी। खुद फरेबी की धुन में मैं वापसी के सारे रास्ते गंवा चुकी थी। कुदरत ने मुझको ऐसी सज़ा दी कि वैरान हो गई। सच कहते हैं, लड़कियां कांच के खिलौनों की मानित होती हैं। उनके लिए ज़िंदगी एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसके इर्द गिर्द लातादाद कांटे बिखरे होते हैं। ज़रा देर को पैर रास्ते से उतरा तो सारे कांटे आपके पैरों में चुभ जाते हैं।